یہ ایک مکمل کتاب ہے. اس کتاب کے کل 43 پارٹس ہیں. آواز تالیوان، مصنف ہے راحت. یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر 0333249537 اور کال نمبر 0300291960 پر محمد اظہر لطیف سے. یہ کتاب 312 صفحات پر مشتمل ہے. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 43 صفحہ نمبر 309 سے. جس وقت ہم نواب فیروز الدین کی کوٹھی میں داخل ہوئے تو کوہرام مچ گیا. اس طرح خاموشی سے نواب صاحب کبھی کہیں نہیں آئے تھے. گھر کا ایک ایک فرد خوشی سے اچھل پڑا. رشید الدین احمد خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے اور مجھے عجیب سا لگ رہا تھا. نواب صاحب نے مجھ سے پوچھے بغیر میرے لیے کوٹھی کا ایک حصہ ٹھیک کرا دیا. دوپہر کے کھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا میں وہی آرام کروں. نہیں نواب صاحب، یہاں میرا گھر موجود ہے. کیا مطلب؟ نواب صاحب مجھے دیکھنے لگے. کیا مطلب تمہارا گھر؟ جی ہاں. کہاں بھائی؟ بس آپ کی کوٹھی سے محلے کی ایک بیٹھک ہے جو میری ہے. او، تمہارا مطلب ہے؟ جی ہاں. میں رشید الدین صاحب کے ساتھ ہی قیام کروں گا، میں نے جواب دیا اور رشید الدین احمد رو پڑے. کیا کہوں میں تمہیں؟ انہوں نے کہا. اس میں رونے کی کیا بات ہے رشید الدین؟ جاؤ میاں جاؤ، ویسے بڑے ہی بے مروت ہو، نواب صاحب نے کہا. اور میں رشید الدین احمد کے ساتھ اپنی بیٹھک میں آ گیا. چچی جان، افشاں اور دوسری لڑکیاں میرے گرد جمع ہو گئی. افشاں اتنی ہی پیاری تھی، میں نے اسے خوب پیار کیا اور پھر کہکشاں کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں. چچی جان، کہکشاں کہاں ہے؟ بھئی ابھی تو یہی تھی. کہکشاں چچی جان نے آواز دی اور کہکشاں سمٹی آ گئی. اس کے چہرے پر ان گنت پھول کھلے ہوئے تھے اور میں نے اسے دیکھتا رہ گیا. بے شمار باتیں ہوئی. میں نے نیتیکا کے قصے سنائے اور رشید الدین احمد صاحب کا سینہ فخر سے پھول گیا. اب تمہارا کیا پروگرام ہے میاں؟ بس اب یہاں کاروبار شروع کروں گا، آپ میرے لیے ضروری بندوبست فرما دے. بھئی ہم خزانچی نواب فیروز الدین کے ہی رہیں گے، رشید الدین صاحب بولے اور میں ہنسنے لگا. میرے ذہن میں آج کل ہر وقت خیالات کی پھلجھڑیاں چھوٹتی رہتی تھیں اور میں نے وہ مقام حاصل کر لیا تھا جس کے لیے سوچ کر میں نے اپنا گھر چھوڑا تھا. اور اب نہ جانے کیوں مجھے گھر کے لوگ یاد آنے لگے. نواب فیروز الدین نہایت ہی ایماندار انسان تھے. قیمتی ہیروں کی فروخت کا کام میں نے ان کے سپرد کر دیا تھا اور دنیا کے کئی ہیروں کا کاروبار کرنے والی فرموں سے بھی ان کی بات چیت چل رہی تھی. بلاخر چند ہیرے میری شعوری کوشش سے فروخت ہوئے اور مجھے اچھا خاصا روپیہ مل گیا. دوسرے ہیروں کی بات جہاں تک رہی تھی وہ ابھی ہم نے فروخت نہیں کیے تھے. یہ دولت کافی تھی. خود نواب فیروز الدین صاحب بھی میرے معاملات میں بے حد دلچسپی لے رہے تھے. انہوں نے میرے لیے ایک عالیشان کوٹھی خرید لی جو ایک خوبصورت علاقے میں واقع تھی. نواب صاحب کو اندازہ تھا کہ میری حیثیت اب کیا ہو گئی ہے، چنانچہ انہوں نے میرے شایان شان انتظامات کیے تھے. انہوں نے چند ملازم میری خدمت کے لیے مامور کر دیے تھے. پھر ایک خوبصورت فرم کھول دی گئی جو ہیرو کے کاروبار کے لیے تھی اور ہمارے پاس جتنا بڑا ذخیرہ تھا وہ پوری دنیا میں تہلکہ مچا سکتا تھا. پھر خاموشی سے ساری تیاریاں ہو رہی تھی. کوثر اب بالکل بدل گئی تھی. وہ سرعام مجھے بھائی جان کہتی تھی اور کوئی جھجک محسوس نہیں کرتی تھی. کہکشاں مصروف تھی لیکن ایک شام کوثر کی کوششوں سے ہمیں تنہائی مل گئی اور اتفاقیہ موقع پیدا ہو گیا تھا. لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کوثر کی بدماشی ہے. اب کہکشاں مجھے دیکھ کر جھجک گئی تھی لیکن میرے دل میں اس وقت زمانے بھر کا پیار سمٹ آیا تھا. میں نے پیار بھری نگاہوں سے اسے دیکھا. کہکشاں؟ جی، میں نے بھاری آواز میں کہا. کیا بات ہے؟ جی میں کچھ سمجھی نہیں. وہ گھبرا گئی. مجھ سے کچھ چھپاؤ گی؟ ایمان سے کوئی بات نہیں. کیا سوچ رہی ہو؟ یہی کہ ہم یہاں تنہا ہیں. تو پھر؟ بس کچھ نہیں، یہی سوچ رہی تھی. مجھ سے خوفزدہ ہو؟ ہرگز نہیں. تو پھر باتیں کرو نا. بتاؤں؟ اس نے شرارت سے کہا. جی. امی اور ابو آج کل کیا باتیں کرتے ہیں؟ جی. میں نے بے بسی سے چاروں طرف دیکھا. بتاؤ تو صحیح، کیا بتاؤں؟ اب وہ ہماری شادی کی باتیں نہیں کرتے، میں نے کہا اور کہکشاں کا چہرہ سرخ ہو گیا. بتاؤ کہکشاں. اور کہکشاں کے چہرے کے تاثرات بدل گئے. جی نہیں، وہ آہستہ سے بولی. کیوں؟ کیا ان کا ارادہ بدل گیا ہے کیا؟ میں نے کہا. ہاں. لیکن کیوں؟ ہم آپ کے قابل نہیں ہیں سرفراز. ارے کیوں؟ اب کیا میری ناک ٹیڑھی ہو گئی ہے؟ جی نہیں. پھر؟ اب آپ بہت بڑے انسان ہیں. ارے تو پہلے میں کیا چھوٹا سا تھا؟ ہاں پہلے آپ ہماری طرح تھے. اور اب؟ میں نے پوچھا. اب آپ خود بھی یہ نہیں چاہتے سرفراز صاحب. آپ نے اس وقت بھی. ہاں کہکشاں، اس وقت میں نے تم سے کیا کہہ سکتا تھا؟ اس وقت میں کچھ بھی نہیں تھا اور میں تمہیں بھلا کیا دیتا. لیکن آج میری زندگی کا مشن پورا ہو چکا ہے. اس وقت میں اگر میں نے کچھ سوچا ہے تو تمہارے بارے میں کہکشاں.
और अब सुन लो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बस यूं समझो, तुम होगी या कोई भी नहीं होगा, मैंने मजबूत लहजे में कहा। और कहकशां भौचक्की होकर मेरी शक्ल देखने लगी। तो कौसर बाजी ने ठीक कहा था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने मेरी पेशानी चूम कर कहा था कि खुदा तुम्हें सरफराज करे। मैंने वजाहत तलब की तो उन्होंने मुझे खूब सताया। उन्होंने आपके बारे में नहीं बताया था? हाँ, लेकिन ये जरूर बताया था कि कितनी लड़कियों ने आपको परेशान किया और आपने ठुकरा दिया उन्हें। और फिर उन्होंने मेरे बारे में कहा। कौसर ने ठीक कहा है कहकशां, बस एक बात बता दो जी, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? और कहकशां का चेहरा सुर्ख हो गया था। जवाब दो कहकशां, मैंने इसरार किया। नहीं, उसने आहिस्ता से कहा। और फिर उस रात मैंने रशीदुद्दीन अहमद साहब से गुफ्तगू की। अगर आप मुझे इजाजत दे तो अपने मकान में चला जाऊं। खुदा तुम्हें मुबारक करे बेटा। इसके अलावा मैं आपको कुछ तकलीफें देना चाहता हूँ। मियाँ बेतकल्फी से कहो कि आप मेरे वालिदैन को मेरे बारे में इतला दे दें। ओह, तो क्या तुम मुझे उनके बारे में बता दोगे? हाँ, मेरे लिए इससे बड़ी खुशबख्ती क्या होगी? रशीदुद्दीन साहब बोले। तब मैंने उन्हें अपनी जिंदगी की पूरी कहानी सुना दी और रशीदुद्दीन साहब का चेहरा सुर्ख हो गया। बस काफी है बेटे, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। और दूसरे दिन खुद नवाब फिरोजुद्दीन और रशीदुद्दीन साहब चल दिए। मैं काफी बेचैन था। नवाब साहब और रशीदुद्दीन साहब चौथे रोज वापस आए और उनके साथ मेरा पूरा खानदान था। न जाने दादा साहब को क्या हो गया था, मुझे खूब गले लगा कर रोए। 20 जुलाई की शादी मेरे एक भाई से हो गई थी, वो भी अपने खूबसूरत बच्चे के साथ आई। नवाब फिरोजुद्दीन ने उन्हें अपना मेहमान रखा था। रात भर घर वाले मुझसे गुफ्तगू करते रहे और मैंने अंदाजा लगाया था कि अभी उन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम। इन दोनों बुजुर्गों ने मेरे ऊपर ये एहसान किया था। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है बेटे? वालिद साहब ने पूछा। आप लोग तशरीफ लाए, ये मेरी इज्जत अफजाई है। हम तुम्हें लेने आए हैं भैया, मेरे बड़े भाई ने कहा। मैं नकारा इंसान हूँ भाई साहब, आपके लिए हाँ दर्द सर बन जाऊंगा। नहीं सरफराज, बहरहाल तुम भाई हो, जायदाद में तुम्हारा इतना हिस्सा है कि तुम आसानी से जिंदगी बसर कर सकते हो। लेकिन आप लोगों के ख्यालात कैसे बदल गए? बस आपकी जुदाई से, अफसोस मेरी जिंदगी अब बदल गई है। क्या मतलब? वालिद साहब ने कहा। मैं यहाँ कारोबार करता हूँ। क्या मतलब? वालिद साहब फिर उसी अंदाज में बोले। लेकिन मैंने इस बात का मतलब दूसरे दिन ही बताया। नवाब फिरोजुद्दीन और रशीदुद्दीन अहमद साहब भी मेरे साथ शरीक थे। पहले हमने इन्हें अपनी हीरो की फर्म दिखाई। वालिद साहब ने बड़ी ही दिलचस्पी से हीरे देखे, लेकिन वो हैरान भी थे। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इसलिए कि ये फर्म आपकी है। मैंने कहा। क्या मतलब? आपके इस नाकारा बेटे ने ये कारोबार कर लिया है। जी, ये आपका कारोबार है और ये फर्म, ये इमारत आप ही की है। मैंने कहा। और वालिद साहब हैरत से नवाब साहब की शक्ल देखने लगे। उनका चेहरा धुआं हो गया था। आपको तस्लीम करना होगा जनाब कि आपका बेटा नकारा नहीं है, लेकिन ये सब कुछ इसने अपनी कुव्वते बाजू से पैदा किया है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? आपको अपने खून पर एतमाद नहीं है? खुदा की पनाह, ये तो बहुत बड़ी फर्म है। जो कुछ भी है आपका है। हम जल्दी से उन्हें कोठी पर ले गए और मेरे बाकी भाइयों का वालिद साहब ने जब उन्हें मेरे बारे में बताया तो वो तो पागल हो गए। वो हैरानगी से एक एक चीज को देख रहे थे। आखिर में वालिद साहब ने कहा, खुदा तुम्हें खुश रखे सरफराज। आपने इसका नाम ही सरफराज रखा है। नवाब साहब मुस्कुराकर बोले। अब आप इस कोठी में क्याम करेंगे? मैंने कहा। वे ये नाइंसाफी है। नवाब साहब ने इतराज किया। क्यों नवाब साहब, तुम मेरे मेहमानों पर कब्जा जमा रहे हो। मुझे अपने बेटे की कोठी में रहने की इजाजत दें नवाब साहब, वालिद साहब ने कहा। और नवाब साहब हंसने लगे। मेरे घर वालों की जो कैफियत थी वो बयान से बाहर है। सब के सब जैसे तिलिस्म हाव में थे। रफ्ता रफ्ता वो इतदाल पर आ गए। 15 रोज तक वो मेरे मेहमान रहे। फिर एक रात वालिद साहब ने मुझसे पूछा, ओ सरफराज बेटे, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैं यही रहूंगा अब्बा जान, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन हमारे जाने के बाद मेरा मतलब है, क्या तुम इस कोठी में तन्हा ना रहोगे? ये आप सोचें। शादी नहीं करोगे? आप हुक्म देंगे तो जरूर करूंगा। वाकई? वालिद साहब खुश हो गए। जी। ओहो नवाब अजीजुल्लाह खान की 2 लड़कियां बेमिसाल, और वो मेरे दोस्त भी हैं। तुम्हारी शायान शान है। एक दरखास्त मेरी भी है, कहो। मैं इन दोनों में से किसी से भी शादी नहीं करूंगा। अरे क्यों? गुस्ताखी के लिए शर्मिंदा हूँ। मैंने शरीके हयात का इंतखाब कर लिया है। मैं समझ गया। क्या समझ गया अब्बाजान? पहले ही समझ गया था, वालिद साहब मुस्कुरा कर बोले। बहरहाल अब मुझे तुम्हारी खुशी अजीज है। अब मैं तुम्हारे मामले में नहीं बोलूंगा। और फिर नवाब फिरोजुद्दीन भी हमारे हम पल्ला है। वो लोग भी तुम में पूरी पूरी दिलचस्पी लेते हैं।
नवाब फिरोजुद्दीन, मैंने सुकून से कहा। हाँ, क्या तुम कौसर को पसंद नहीं करते? कौसर? आप कैसी बुझी बुझी बातें कर रहे हैं। मैं कौसर को नहीं पसंद करता अब्बाजान। ओ फिर मैं कहकशा से शादी करूंगा अब्बाजान। कहकशा कौन है? रशीदुद्दीन साहब की लड़की। अरे लेकिन वो तो मेरा मतलब है, रशीदुद्दीन तो नवाब फिरोजुद्दीन के मुलाजिम है। उनके पास क्या रखा है? दौलत की बात कर रहे हैं अब्बाजान? हाँ, यही समझो। आपको मेरे पास किसी चीज की कमी महसूस हो रही है जो आप मुझे मेरे ससुराल से पूरी कराना चाहते हैं? मगर हैसियत भी बड़ी चीज है बेटा। तो आप यूं समझ लीजिए कि मेरी हैसियत रशीदुद्दीन अहमद की वजह से ही है। क्या मतलब? तफसील नहीं बताऊंगा। नजर सानी करो अपने फैसले पर। मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं। आप फरमा चुके हैं कि आपको मेरी खुशी अजीज है। हाँ, लेकिन हमाकत नहीं, वाले साहब ने कहा। तुम नजर सानी करके फैसला कर लो और मुझे जवाब दो ताकि मैं तुम्हारे लिए कोशिश करूं। अगर आप जहमत करना चाहते हैं तो मोहतरमा रशीदुद्दीन अहमद साहब के घर वालों से बात कर लें, वरना इस सिलसिले में कोई कर्म फरमाए न फरमाए, मैंने सख्त लहजे में कहा। और वालिद साहब चौंक कर मुझे देखने लगे। तो अब तुम हमें जलील करके बदला लेना चाहते हो? वालिद साहब बोले। मेरे जहन में ऐसा कोई ख्याल नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी पर किसी का कोई तसल्लुत नहीं है, मैंने कहा। और वालिद साहब के पास उठ गया। न जाने क्या क्या स्कीमें बनी, न जाने क्या क्या बातें हुई, लेकिन दूसरा दिन खुशगवार था, हैरत अंगेज तौर पर खुशगवार। वालदा साहिबा, भाई भाभी सब मुस्कुरा रहे थे। फिर तैयारियां होने लगी। भाई बाजार चले गए और वापस आए तो मिठाई के दर्जनों टोकरे साथ लाए। जुलेहा मेरे लिए बाजार गई, अब मेरे पास आई। क्या हो रहा है भाई? उसने पूछा। कुछ नहीं। आप कहाँ गई थी? अभी बताने का वक्त नहीं है। जुलेहा हंसती हुई भाग गई, लेकिन बात तो मालूम हो ही गई थी। अब किस्सा रशीदुद्दीन अहमद हाँ के यहाँ का था। बाद में तफसीलात मालूम हुई। रशीदुद्दीन अहमद साहब हैरान रह गए। उनके जहन में किसी तरह ये बात ही नहीं उतर रही थी। उन्होंने जिमनी तौर पर इकरार कर लिया और उसी रात मेरे ऊपर हमलावर हो गए। सरफराज बेटे, मेरे तो तुम बच्चे हो, सिर्फ एक बात बता दो, क्या ये सब कुछ तुम्हारे इल्म में है? तुम्हारी मर्जी से हो रहा है? हाँ, मैंने जवाब दिया। वो मुझे देखते रहे और फिर उन्होंने मुझे बाजू में भेज लिया। फिर कहकशा मेरे आंगन में उतर आई। मेरा दिल मुनव्वर हो गया। उसे रुखसत करके लाने वालों में जुलेहा, कौसर और नूरजहां थी, और मैंने तीनों की आंखों में मोती चमकते देखे थे और ये मोती जमीन में गुम हो गए। मैं और मौजे कहकशा मेरी बीवी है। हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़की है और एक लड़का है। लड़के का नाम जफर है और लड़की का नाम अरूज है। टोबा मेरा वफादार दोस्त आज तक मेरे साथ है और मेरे छोटे से बेटे के लिए वो नेज़े और तलवारें बनाता रहता है। अक्सर दोनों मजाक भी करते हैं। आप भी हमारी बेहतर जिंदगी के लिए दुआएं करते रहा करें। आपका सरफराज। खत्म शुद्ध।